अस्सलाम वालेकुम और मैं सदफ हूँ। और आज हमने जिस वेबिनार को प्लान किया था उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे पास एडिक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, उस एडिक्शन की प्रॉब्लम का जो शैडो है, साथ जो लिविंग स्पाउसेस हैं उनके ऊपर कितना पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल जो उनकी वेल बीइंग है और जो उनकी लाइफ क्वालिटी है वो कितना इफेक्ट होती है इस चीज से और कितनी मुतासिर होती है, उस चीज को हम देखेंगे। इस वक्त हम फिकरलेस के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त हम लोगों को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है और कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, और शायद कि हम बेटर अपने थॉट्स रिवील भी कर सकें और बेटर अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर भी कर सकें। पहले एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोग्रेस करेंगे। Um, Hi, my name is Kelly. Um, my husband is a drug addict, recovering drug addict. He was addicted to cats and cocaine, and I had no idea. I think I watched too many fairy tale movies growing up because my husband, in my mind, was Prince Charming, who was going to sweep me off my feet and look after me for the rest of my life. And that did not happen. I got the opposite of that. And I didn't know how to handle it. First, I haven't been given drugs, I haven't taken drugs, offered drugs, anything. So I didn't really know what the signs were. And I just noticed him changing. And his behavior became more erratic and he became less caring. And I blame myself. I thought I wasn't good enough. I thought maybe our daughter, and myself, we weren't good enough for him to come home to. And he would stay out all night and he would give no explanation or the craziest explanations. And yeah, I felt insecure. Um, and when I eventually found out about it, you don't understand. So I still blame myself. It almost had to get worse before it got better. I had to tell him he wasn't allowed coming home. I had to be tough, and the best thing that I could ever have done for me. Um, and he phoned me and he was screaming at me because I told him he couldn't come home. And I was told that I need to change my motor on my gate and put a padlock on my gate. And I had to be tough and say he couldn't come home. And the hardest thing, I think, about the whole thing was realizing I actually didn't have to do those things. He didn't try and come home. Uh, he was cross with me. I was punishing him, and I was the bad guy. And that was a very hard thing to go through. We've been through the worst. He's been clean for 20 months now. So his second birthday is in August. And I've got my realist farming. He's as good as the best husband I could have expected realistically, and I'm thrilled. I think that everything worked out the way it was supposed to, and I went through things that I was supposed to go through, and I feel I need to share my story, as embarrassing as it is, and the stories that I can tell and the excuses he made, but I feel it's necessary for me to share it. I know now there are a lot of people out there going through what I'm going through or what I've been through, and some of them have been through it and are trying to, you know, get used to it or understand it. And some of them are going through it right now and they don't understand it. And I feel it on my heart that I need to let people know that it's okay, that it's not their fault. And that is all I can think of right now.
I have a camera on me. Yeah, no fun. ARC helped me learn that I was enabling him, which wasn't easy to learn because it's not nice to hear that he could have gotten help sooner if I had been sterner. But between his mom and myself, I'd lose my temper because he didn't come home, and I'd say, "Get out." And he'd go to his mom and he'd stay at his mom, and eventually I'd feel bad or I'd think I overreacted, and then he'd come home. And, it went on like that for several months. And it's that you need tough love. I know a lot of people say that addicts will, recover when they're ready, and I agree to that to some extent, but sometimes there needs to be an event that triggers it, and I found my was not letting him come home again. Also, another thing that helped me was going to meetings. I needed my own meetings, my own platform where I could talk and not be judged. And I found that in Nar-Anon and Al-Anon. And also going to counseling. I found it freeing to people that weren't connected to either one of us emotionally or weren't going through it, or my family was obviously on my side and his family obviously on his, so that wasn't very much of a help. And also, I think I wrote a lot of it down. I think another thing that helped me a lot was the letter I wrote to Barry while he was in here. I got to write of events that happened that hurt, and that helped obviously both of us. He remembers that very clearly, reading that letter out. We've both, it hasn't changed, everything. Rehab and Barry recovering hasn't been like a magic wand. We still fight like cat and dog some days, and we have our moments. There is nothing that is controlling his every move. There's nothing that's making him behave a way that a person wouldn't behave. And now I feel loved. I think for the first time in our 6-year marriage, I actually feel like a wife, and I am supposed to be in this marriage, and like I made the right decision. Barry, as a father, it was night and day. I think he got to a stage where he, not even thinking of our daughter, made him feel guilty for using drugs or for not coming home. And one day, well, several times, he took my car because we only had one car, and he'd tell me he had to go for interviews, and he would drop me at work and our daughter at school, and then 5 o'clock would come, and I'd never know if he was going to fetch me. And when he didn't fetch me, I'd have to organize a way to get home from my sister-in-law, and I'd then walk the couple of kilometers to fetch our daughter from school. I was 7 months pregnant with our son at the end of it, and it was winter at the time, and I had such bad morning sickness that I'd have to stop and get sick into a bush or something. But it was dark and it was cold, and yeah, you actually wonder whether that person realizes, and the problem is that they don't. And he just blocked it out. And I remember me saying to someone, but he's a good father. This is why I'm still here, is because he's a good father, before I knew about the drugs. And someone said to me, there's more to being a good father than being fun, than play wrestling and making jokes. And that's what it was. He wasn't a good father. And today it's the opposite. He's the fun and jokey one more than I am, more playful than I could ever be, and he's the serious, realistic, practical father. He's the caring one, the one that cares about their needs above his own, and that was never there.
before he went to rehab. I only realized later that it was always him first. It would be him and then our kids and then me after that. And we still get times where it's like that. Either my husband's fighting to watch sport or my kids are fighting to watch Cartoon Network. There's still that element there of selfishness, but we all have that. But he's the realistic father, dependable husband and dad that he never was before. It could only get worse if it is not, the person doesn't. ये एक वीडियो मैंने शेयर की। एक कैली नाम की खातून है, जिन्होंने यूके में वो रहती हैं, और उनके हस्बैंड भी इसी तरह ड्रग एडिक्ट थे, और उन्होंने उनकी रिकवरी की एक स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर की है कि किस तरह जब वो एडिक्शन में थे तो शी वाज लाइक किस तरह की वो लाइफ गुजार रही थी और उनके बच्चे किस तरह मुतासिर हो रहे थे। और जब उनके हस्बैंड एडिक्शन से रिकवर करते चले गए हैं, एंड शी टोल्ड के 20 मंथ्स हो चुके हैं कि वो रिकवर्ड हैं एडिक्शन से, तो किस तरह उनकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, और किस तरह उनकी मतलब लाइफ में बेहतरी आ चुकी है, और बच्चे भी जो हैं वो मजीद बेहतर महसूस कर रहे हैं। अगर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाएं, तो अब इस पे मैं प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने वो स्ट्रैटेजीज देखनी है कि कोप अप करने के लिए ऐसी सिचुएशन में एक वाइफ को या एक हस्बैंड को, जबकि दूसरा स्पाउस ड्रग एडिक्ट है, तो किस तरह वो स्ट्रैटेजाइज करे इस पूरी सिचुएशन को कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो आ सके और सर्वाइवल भी हो सके, यानी कि लाइफ जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट ना हो स्पाउस की या चिल्ड्रन की अगर उसके साथ मौजूद हैं, या मजीद फैमिली मेंबर्स जो साथ में हैं। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है कि जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल मुतासिर होगा, एक ही इंसान मुतासिर होगा, बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर होते रहेंगे। तो हम इसमें कुछ रेजिलिएंट स्टेप्स भी जो जो कि लेने चाहिए स्पाउसेस को, उसको भी देखेंगे, और साथ में हम इस चीज को भी एड्रेस करेंगे कि ड्रग एडिक्शन का सफर अकेला सफर नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ में जो लोग उससे अटैच पार्टनर्स होते हैं वो भी बैडली सफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले एडिक्शन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एक विशियस साइकिल होता है एडिक्शन का, जिसमें बिंजिंग है, विड्रॉल है, फिर रिकवरी है, उसके बाद दोबारा भी ऐसा हो सकता है कि रीलैप्स हो जाए, और बहुत बार इनका रीलैप्स हो जाता है ड्यू टू द सोशल प्रेशर्स, ड्यू टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ड्यू टू द पर्सनल फैक्टर्स इवन, या फिर लो रेजिलियंस होना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, शैटर्ड इन्वायरमेंट होना, तानेबाजी या तशने शिकायत शिकवे होना, यकदम एनवायरनमेंट का नेगेटिवली टर्न कर जाना भी उनको वापस एडिक्शन में धकेल देता है। तो एडिक्शन किसी भी ऐसे सब्सटेंस का एक क्रॉनिक यूज है, एक ऐसा यूज है कि जिसके बगैर आप ना रह सके, फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करना शुरू कर दे और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करना शुरू कर दे, यानी आपके ब्रेन को बेसिकली वो कैप्चर कर ले और उसके बगैर आप रह ना सकें। जब आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो एज पर DSM-5 TR जो रिवीजन आई है, उसमें हम फिर उसे ड्रग एडिक्शन का डायग्नोसिस दे सकते हैं कि अब इसकी इमोशनल, पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हर एक चीज के ऊपर इसने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। सो ही कैन बी डायग्नोस्ड बाय द प्रॉपर डिजीज ड्रग एडिक्शन। और उसकी वजह से फिर जब सबको पता लगता है कि ये बंदा ड्रग एडिक्ट है या ये बंदी ड्रग एडिक्ट है, तो लोग अवॉइडेंट टेक्निक से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपके पीयर्स होते हैं वो तो अवॉइड कर सकते हैं, इवन कि आपके ब्लड के जो आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस लाइक मदर हैं, फादर हैं, इफ यू आर मैरिड, तो फिर वो भी आपको छोड़ छोड़ सकते हैं इजीली, वो भी अपने लिए कोई और वे आउट देख सकते हैं। बट द वन पर्सन जो कि स्पाउस है आपका, उसको हर कीमत पर आपके साथ रहना भी है, और उसी घर में रहना है, उसी प्लेस में रहना है, उसी जगह पे उसने अपने आप को सरवाइव करवाना है। और उस एक जगह पे रहना उसके लिए कितना टफ हो सकता है, बिकॉज एक पर्सन बिल्कुल रियलिटी से दूर है, वो अपनी एक एडिक्शन के अंदर मुब्तला है, उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही एम बना हुआ है कि सुबह उठते साथ ही उसे पैसे चाहिए, उससे पैसों से नशा खरीदना है, नशा खरीदेगा तो वो नॉर्मली बिहेव कर सकेगा, या एटलीस्ट उसकी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी बहुत वापस आ सकेगी, वो भी फुल तो नहीं, ज़ाहिर है थोड़ी बहुत वापस आ सकेगी।
और फिर सारा दिन नशा करने के बाद वो रात को सो जाएगा। तो जो लाइफ की रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के कोई मसाइल हैं या कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ना वो उनको एड्रेस कर सकता है, ना ही अपने पार्टनर को वो उसमें सपोर्ट कर सकेगा। इस तरह अभी रिसेंटली जो कि मेरे पास इस तरह के बहुत केसेस रेगुलरली आते रहते हैं, बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन एडिक्शन के ट्रीटमेंट में ही है। तो उसके अंदर काफी सारे इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं जो कि स्पाउजल स्पाउजल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। लाइक के जब मैं रिहैब में, अभी पिछले दिनों ही एक केस मेरे पास आया था सारा का, और उसका जो हस्बैंड था, उस पर वो कोकेन भी ले रहा था, इसके अलावा वो मेथ का भी इस्तेमाल कर रहा था, हेरोइन का भी इस्तेमाल कर रहा था। तो काफी सारी उसकी मल्टीपल ड्रग एडिक्शन थी, मल्टीपल ड्रग एडिक्शन थी। और उसके अलावा सॉरी, थोड़ा सा ये नेटवर्क का इशू आ रहा था। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि जो खातून मेरे पास आई थी, उनकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। जब वो खातून मेरे पास आई तो वो खुद भी सिगरेट स्मोकिंग जो है वो कर रही थी, और उनको भी खुद ये वाले इश्यूज जो है वो आ रहे थे। और वो भी काफी ज्यादा टिल्टेड हो रही थी इस तरफ को, और उनका माइंड जो है वो डाइवर्ज हो रहा था इस तरफ को कि उनको भी यही वाला लाइफस्टाइल अपना लेना चाहिए। और बच्चे भी थे उनके, और उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो है वो घर का भी सारा सामान जो है वो सेल आउट कर चुके हुए हैं, और मजीद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी वो बेची जा रहे हैं। और मतलब घर के अंदर से बिल्कुल एक सफाया होता जा रहा है। वो पहले अपने घर में रहती थी, घर बिक गया, फिर वो वहां से रेंट पे आ चुकी हैं, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम के साथ वो आई थी, और शदीद डिप्रेशन में भी थी, और उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर की एंजाइटी भी हो रही थी। इस लेवल तक वो सोच रही थी कि उनको ये भी लग रहा था कि उनका जो हस्बैंड है वो उन्हीं को सेल कर देगा, या फिर उनके बच्चों को सेल कर देगा, क्योंकि उनकी दो बेटियां हैं, तो उनको ये लग रहा था कि वो बेटियों को सेल कर देगा। तो ये वाले जो चैलेंजेस थे वो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा थे। उनको ये भी फीलिंग आई हुई थी कि असगर जो है वो ना आप कमा सकता है, तो उनको ये भी शक पड़ा हुआ था कि शायद वो बाहर कहीं भीख मांगता है, और भीख मांग के भी वो पैसे इकट्ठे करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, यानी कि सारा की जो फैमिली के रिलेटिव्स हैं, असगर उनके पास चला गया विदाउट द परमिशन ऑफ सारा, और उनसे भी ढेर ढेर पैसे लेके आ गया। और फिर जब उन्होंने सारा से तकाजा किया तो सारा के पास उनको देने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से फैमिली ने भी उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया, फैमिली गैदरिंग्स में बुलाना छोड़ दिया, उनको अच्छा समझना छोड़ दिया। उनके ख्याल में उनको ये लग रहा था कि उनकी रिस्पेक्ट में भी बहुत कमी आ गई है। असगर के साथ आइडेंटिफाई करने से उनके प्रॉब्लम्स में भी इजाफा होता जा रहा है, यानी जिन लोगों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे वो भी खराब होते जा रहे हैं। जगह जगह से उन्होंने जो असगर साहब थे, उन्होंने डेब्ट्स जो हैं वो लिए हुए थे, और हर जगह पे सारा ही का नाम जो है वो दर्ज था। तो वो काफी इस मामले में परेशानी में मुब्तला थी, और उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस सारे कर्ज को चुकाएंगी। अब यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि उनकी फैमिली ने भी उनको आइसोलेट किया हुआ था, और ये शर्त और ये कंडीशन रखी हुई थी कि असगर से डिवोर्स ले लो, तो सेपरेट हो जाओ, खुला ले लो, ठीक है, अलग हो जाओ, तो फिर हम तुम्हारी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ यू आर चूजिंग असगर, तुम असगर के साथ रह रही हो, तो फिर तुम हमें चूज नहीं कर सकती, तुम फिर अलग रहो, ठीक है, हमारे साथ फिर कोई राब्ता या कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बेइज्जती जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे माशरे में स्टिग्माटाइजेशन बहुत स्ट्रांग है इस तरह की चीजों के साथ, तो इतना बड़ा स्टिग्मा लगाया जाता है, फिर उसकी वजह से जो स्पाउस होता है वो भी उस स्टिग्मा के अंडर आ जाता है। अब वो इस कंफ्यूजन में भी मुब्तला थी कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें असगर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उनका एक लव बॉन्ड भी था, एक मतलब एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि डिवोर्सी होने के बाद उनके ऊपर एक डिवोर्सी का लेबल लग जाएगा, तो वो भी उनको एक अजीब सा अंदर से वहम आ रहा था कि क्या उनके ब्लड रिलेशंस उनको आगे सपोर्ट करते रहेंगे या फिर उनको छोड़ देंगे, और उनकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीली आएगी। फिर वक्त भी वो मिजरेबल लाइफ गुजार रही थी। और ओवरऑल जो एक पूरी सिचुएशन थी वो बिल्कुल, मतलब यूं कह लें आपके, बिल्कुल हेल्पलेसनेस थी उनके अंदर। और बात बात करते पे वो रो रही थी, और बार बार उनके आंसू निकल रहे थे, फिर उनको दिलासा देना पड़ रहा था, और फिर कहीं जाके वो अपनी बात जो है वो एक्सप्लेन कर पा रही थी। सबसे ज्यादा उनको जो इशू आया हुआ था वो ये था कि उनका रिलेशनल भी बहुत ज्यादा गैप आया हुआ था असगर के साथ। और जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि उनकी जो बच्चियां थी, जो उनकी डॉटर्स थी दो बड़ी, उस उन बच्चियों को लेकर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट को लूज कर चुकी हुई थी। उनको ये शदीद एक मुसीबत लगी हुई थी कि जैसे वो मेरे पास भी बैठी भी नहीं,
मतलब उनको यही हो रहा था कि पता नहीं बच्चियों को बेच देगा पीछे से, हाय पता नहीं उनके साथ क्या करेगा, गुर्दे बेच देगा, उनको सेल कर देगा, इसको तो बस नशा चाहिए तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो इस मायूसी की इंतहा तक वो खातून जो है वो पहुंची हुई थी, और इतना ज्यादा उनकी मतलब दुख भी था, उनकी दर्द भी था उनकी आवाज में। और बात बात में वो बिल्कुल होपलेस हो जाती थी, फिर बिल्कुल एक पॉज आता था, खामोश हो जाती थी, कभी उनकी बॉडी शिवर करने लग जाती थी, नमनेस भी आ रही थी उनकी लेग्स में, बिल्कुल हिलती नहीं थी एकदम से, और फिर एकदम से बहुत तेजी से वो शिवर करना शुरू कर देती थी, परेशान भी हो जाती थी, हैंड मूवमेंट्स भी उनकी शेकी थी। तो फिर काफी तरीके से उन्हें डिफरेंट तरीके से काउंसिल किया गया, और उन्हें हमारा एक है सपोर्ट प्रोग्राम है, उससे भी उनको फिर मुतारिफ कराया गया कि वहां से उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कुछ और चीजें भी उनको बताई गई। और इसके अलावा हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से एक इदारा है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करता है, तो उसके साथ हमारी रजिस्ट्रेशन डन है, तो हमने उसे सीपीबी का जो है वो लिंक दिया कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर बेपनाह डरी हुई हैं तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सीपीबी से रब्ता कर लें। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अपने बच्चों को एडमिट करवा दें उस वक्त तक जब तक कि आपको लगता है कि सब चीजें और सब सिचुएशंस और मामला ठीक नहीं हो जाते। जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो आप अपने बच्चों को वहां से वापस लेके आ सकते हैं। सीपीबी का ये एक बहुत अच्छा उनका एक स्टेप है कि वो ऐसे बच्चों को रख भी लेते हैं, और साथ में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे वो किसी किस्म का कोई खर्च नहीं लेते, और खुद ही उनके ऊपर खर्च करते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। सीपीबी के अंदर ही एक इदारा है जहाँ पे स्कूल भी है, और वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ओवरऑल तरबियत पे भी अच्छा एक पॉजिटिव काम करते हैं। तो वो फिर हमने उनको एक हेल्प दी वहां से कि चलो एटलीस्ट उनको वहां से एक सपोर्ट हो जाए कि उनके बच्चे सेल नहीं हो जाएंगे, तो बच्चे वहां पे थोड़े से सेफ हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर ये कि सारा के साथ जब बातचीत हमने स्टार्ट की तो उनको हमने इमोशनली इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की, उनको बताया कि उनकी अपनी भी एक ज़ात है, उनकी अपनी भी एक शख्सियत है, उनकी अपनी सेल्फ भी मुतासिर हो रही है, उनकी हेल्थ खुद भी बहुत ख़राब थी, फिजिकली भी बहुत वीक थी, मेंटली तो बिल्कुल ही वो ख़त्म थी। और अपनी कोई सेल्फ केयर उन्होंने नहीं की हुई थी, कोई उन्होंने जो बॉटम्स थी वो कुछ और थी, टॉप उन्होंने कोई और पहना हुआ था, अजीब सी गंदी सी उन्होंने एक शॉल सी ली हुई थी, और जूतियां भी उनकी टूटी फूटी थी, कुछ अच्छे हुलिये में वो नहीं आई थी। और उन्होंने ये बात बताई भी कि उनके कपड़े भी जो हैं वो भी इधर उधर बिक गए हैं या इधर उधर चले गए हैं, कुछ समझ नहीं आई है। और दूसरा ये कि वो ये भी बता रही थी कि अपने पर फोकस करने का उनका मन भी नहीं करता है, उनका दिल भी नहीं करता है, वो बस यही हर वक्त की फिक्रें उनको लगी रहती हैं कि अब असकर जो है वो नया काम क्या करेगा, अब उसके थ्रू क्या मुसीबत आएगी, और अब अपने बच्चों के खाने पीने का कैसे इंतजाम करें, किराया कैसे देना है, बिल कैसे देने हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल के अंदर वो इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं थी, अपना उनको कोई एहसास नहीं था कि वो किस तरह की दिख रही हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी आ रही है, उनकी फिजिकल हेल्थ कितनी डिमोरलाइज हो चुकी हुई है, कितनी डैमेज हो चुकी हुई है, और उनके टीथ जो थे वो बहुत खराब हुए हुए थे, बहुत बुरी हालत हुई हुई थी उनकी स्किन की, बट उनको इस चीज़ का कोई खास एहसास नहीं था। तो फिर हमने इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया, उनको थोड़ा बहुत ये चीज़ें बताई हैं। और अब जाहिर है कि आगे उनकी फैमिली काउंसलिंग की भी तरफ जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आपका स्पाउस ऐसा है तो आप या तो छोड़ दो उसको, अगर आप उसके साथ नहीं चल सकते हो, अगर आप उसको छोड़ दोगे ये भी उसके लिए बेटर होगा और आपके अपने लिए भी बेटर होगा कि अगर आप एक सिचुएशन को कोप आप नहीं कर सकते, आपको नहीं पता आपने उसको कैसे मैनेज करना है, तो आप उसमें अपने आप को इंडल्ज ना करो। अगर आपने उस सिचुएशन में रहना है और उसी स्पाउस को ठीक करने की कोशिश करनी है, उसकी रिकवरी पे काम करना है, तो फिर आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जिनको अप्लाई करना पड़ेगा, और उनकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन से लाइफ के अंदर बेटरमेंट लेके आनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले तो ओपन डायलॉग्स होने चाहिए, यानी कि ब्लेमिंग करना हर वक्त, यानी कि अगर आपका जो स्पाउस है वो अडिक्ट है, आप वो जैसे ही घर आया आपने उसे ब्लेम कर दिया कि तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तुम्हारे से तो मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी तो बदकिस्मती है, ये वो जिस तरह की मतलब रोना धोना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें ना करें, उसके बजाय उसका ट्रस्ट लें, कोशिश करें कि ओपन डायलॉग्स हों, उसको समझाने की कोशिश करें, और उससे भी सुने कि क्या ऐसी वजूहात हैं इंटरनल, कोई उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, कोई बुलिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई हिडन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिलियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रिलेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपसे डिस्कस करेगा। अगर आप ओपन डायलॉग्स की तरफ जाएंगे, इसके लिए आपको उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप एक ब्लेमिंग पर्सन नहीं है,
आप एक अच्छे लिसनर हैं, ताकि वो एक अच्छा स्पीकर बन सके। जब वो स्पीकअप करेगा तो फिर आपने बाउंड्रीज बनानी होंगी, क्योंकि जब आप ओपन डायलॉग की तरफ जाते हैं तो फ्रैंकनेस इतनी बढ़ जाती है कि एनेबलिंग आ जाती है, यानी आप खुद ही पैसे दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जाओ इतने का नशा ले लो। वो बंदा खुश हो रहा होता है कि चलो जी मेरा जो है वो ओपन डायलॉग हुआ था, ओपन डायलॉग पूरा करने के बाद वो कहेगा मुझे 2,000 रुपया दे दो, आपने दे दिया, और उसके बदले में वो जाके फिर वो ड्रग्स लेके आ गया। तो जो सारी बातचीत हुई थी वो रिवर्स हो गई, इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर द एनेबलर इन दैट सिचुएशन। आप कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि झगड़े लड़ाई से जान छुड़ाने के लिए भी जो खवातीन होती हैं या जो मर्द हजरात होते हैं जिनके स्पाउसेस अडिक्ट्स होते हैं ना, वो दे देते हैं पैसे। वो कहते हैं घर का माहौल खराब ना हो तो चलो इसको दे देते हैं। वो फिर क्या होता है कि और फर्दर उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, और फिर जब वो पैसे नहीं दिए जाते तो फिर उसके ऊपर मजीद हंगामे, मजीद प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ताकि बहरहाल पार्टनर भी एक इंसान है, जो एडिक्ट होता है वो भी एक इंसान होता है, तो उसकी भी इनर फीलिंग्स जो है उनको आप देख सकें और उनको आप समझ सकें और सीख भी सकें। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ पे भी स्टिग्मा होता है कि जी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और जो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो खराब होते हैं या वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, रिकवरी के लिए किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, छुपाना चाहिए, छुपाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कर्टन्स डालने चाहिए, ठीक है, किसी को बताना नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो इस तरह नहीं है। ये भी एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, जिस तरह के बाकी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, एक कंडीशन है जिस तरह बाकी सारी कंडीशंस होती हैं। तो जिस तरह आप बाकी कंडीशंस को डॉक्टर से डिस्कस करके ठीक कर सकते हैं, इसी तरह इस कंडीशन को भी डॉक्टर से डिस्कस करके आप ठीक कर सकते हैं। और इसमें भी आप फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। सिर्फ वो बंदा अकेला नहीं अपने आप को इससे रिकवर करवा सकता, उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि किस तरह उन्होंने कम्युनिकेशन पैटर्न्स को अपने ठीक करना है, कहाँ पर नो कहना है, कहाँ पर यस कहना है, किस तरह एनेबलिंग को स्टॉप करना है, और किस तरह उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, और किस तरह उसको वापस से जिंदगी की रियलिटी की तरफ लेके आना है। हमारे यहाँ पे रिहैब्स का भी एक बहरहाल सिस्टम तो है और मौजूद भी है। काफी सारे लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में काम भी करते होंगे या जानते भी होंगे। हर एक रिहैब का इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये कि गवर्नमेंटल लेवल पर असल में स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि अच्छे पॉजिटिव किस्म के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं, जहाँ से वाकई में ही लोग जो है वो एडिक्शन से बाहर सेहतयाब होकर बाहर निकल आए। जो कि बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके खुद के अंदर ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं लॉन्ग टर्म तक पेशेंट बना के रखने के लिए और पैसे खाने के लिए। तो उसकी वजह से भी ये पेशा काफी बदनाम हुआ है, या ये बिजनेस टाइप बन चुका है। तो इसलिए भी फिर लोग रिहेबिलिटेशन में एडमिट करवाना या जाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा ट्रीटमेंट को इनकरेज बहरहाल फिर भी करना चाहिए। ये वाली सारी बातें कि रिहेबिलिटेशन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये कभी एडिक्ट से कभी भी इस चीज पे बात नहीं करनी चाहिए, ताकि वो ये ना सोचे कि मैं नहीं जाता। कम से कम एटलीस्ट ये जरूर है कि वो अगर किसी भी रिहैब में जाएगा तो वहां पर एटलीस्ट वो ड्रग फ्री जरूर रहेगा कुछ टाइम तक। तो एटलीस्ट उसकी काउंसलिंग होती रहेगी, उसको कम से कम ड्रग्स उस लेवल पर कभी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्रोवाइड नहीं की जाएंगी जिस तरह की वो नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा था। और इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी अगर इन्वॉल्व करें तो प्रोफेशनल से भी कुछ झूठ बोलना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। उनका भी यही एक काम है कि वो सिर्फ हेल्प और सपोर्ट ही आपको दे सकते हैं। तो जितना आपका पॉजिटिव एक माइंडसेट बन जाएगा कि टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स ट्रीटमेंट और रिकवरी की तरफ जाना है, तो उतना ही ज्यादा एक मोटिवेशन भी मिलेगी। आपके अपने अंदर भी मोटिवेशन आएगी, स्पाउस के अंदर, और जो एडिक्टेड पर्सन है उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी। और इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर भी आपको एक मोटिवेशनल सपोर्ट जो है परफॉर्म मतलब देनी चाहिए। कि लाइक एक बंदा है, अगर वो रोज दिन में 20 सिगरेट पीता है और उसने 10 पीने शुरू कर दें, सो दैट इज एन अचीवमेंट। और अगर वो 5 पे चला गया है, 2 सिगरेटों पे चला गया है, एक सुबह पीता है एक रात में पीता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उसकी हो गई है। तो इस पे भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। रिलैप्स को एंटीसिपेट करना चाहिए। आपको हर वक्त इस चीज के ऊपर बहरहाल नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिकवरिंग जर्नी जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और उसके जो स्टेप्स होते हैं वो एक एक स्टेप बड़ा क्रूशल स्टेप होता है, क्योंकि कभी भी रिलैप्स हो सकता है। तो फिर आपकी जितनी भी आपने पूरी एक ट्रीटमेंट का सारा एक प्लान किया था वो सब कुछ रिवर्स हो जाता है। तो सारा प्लान आपका फेल हो जाता है। इसलिए ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्पाउस के लिए काफी मुश्किल टाइम होता है कि एक नॉर्मल लाइफ भी लेके चलनी है, एक बंदे के ऊपर नजर भी रखनी है, उसकी जासूसी भी करनी है, लेकिन उसको पता भी ना लगे। बिकॉज उसको अगर ये पता चल गया कि मेरी जासूसी हो रही है तो वो फिर दोबारा भी सिर्फ इस वजह से भी रिवर्स हो सकता है। तो उसको पता लगे बगैर उसकी जासूसी भी करते रहनी है, और साथ साथ उसके ऊपर एक पूरी नजर भी रखनी है, और साथ साथ उसको सपोर्ट भी करते रहना है। तो ये एक जो स्पाउस है बेचारा जो हेल्दी है उसके लिए जाहिर है ये एक इशू हो सकता है, इस चीज से भी उसको निकलना होगा। और इसके अलावा
जो सेटबैक्स आ चुके हैं लाइफ के, ज़ाहिर है फौरन से तो लाइफ दोबारा वैसी नहीं हो जाती है, तो उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आप को वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर एक बंदा एडिक्ट था, वो जॉबलेस हो चुका है, उसको जॉब ढूंढने में वक्त लग सकता है। फाइनेंशियली जीरो हो चुका है तो उसे फाइनेंशियली बेटर होने में वक्त लग सकता है। इमोशनली खराब हो चुका है, सेक्सुअली, फिजिकली, इस तरीके से भी वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका होगा, तो उसमें भी मेडिकेशन उसको देनी पड़ेंगी और उसको ठीक होने की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर रिलैप्स हो जाए तो आप रिलैप्स को भी फोकस करना चाहिए। रिलैप्स को हमें कि ये ना समझे रिलैप्स को कि भाई अब वो दोबारा से एडिक्ट बन गया है, बल्कि रिलैप्स को रिलैप्स के तौर पर लेते हुए फौरन ही उसे रिकवरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और ये ट्राई करनी चाहिए कि रिलैप्स जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग ना हो जाए। तो इसमें हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एक, पर्सनल ग्रोथ को आपने एनकरेज करना है। फिर हॉबीज और इंटरेस्ट उस बंदे के साथ आप अपने ढूंढें और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर जाएं, कॉमन हॉबीज के ऊपर जाएं, और इस तरीके से उनको प्रमोट करें कि वो बंदा दूसरी चीजों को छोड़कर उनमें इन्वॉल्व हो जाए। और उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी एक स्पाउस का बहुत ज्यादा हाथ हो सकता है। तो ओवरऑल एक रिकवरी प्लान बना के पूरे प्लान के साथ चले। प्लान के अंदर जितने मेंबर शामिल करने हैं उनको भी शामिल कर लें। और जो एम्ब्रेसिंग होप का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, कि उसमें सायरा ने, जो सारा थी, हमने उसको यही समझाया था कि वो अपने बच्चों को सीपीबी में डाल दे, अपने आप को लेकर उस बंदे के साथ चलना शुरू करे, और फिर छोटी छोटी चीजों को शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल्स बना के लेके जाना शुरू करे। सबसे पहले उसकी रिकवरी करवाए, उसका एडमिशन करवाए, फिर उसका ट्रीटमेंट गो थ्रू करवाए, और फिर जब वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाए तो उसको वापस लेके आए। फिर उसके बाद हमारे पास आए कि हम फिर आगे की गाइडलाइंस उनको उसको देंगे। और साथ में ये कि वो खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, तो उसे खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने के भी हमने स्टेप्स बताए और तरीके बताए कि इस तरीके से आप अपने आप को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, ताकि दोबारा से कॉन्फिडेंस जो आपका अपना गेन होगा, जब आपके अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर दूसरे में भी आ जाएगा। तो इसमें ये है कि बस ओवरऑल रेजिलियंस और एक होप का ये जर्नी है, ठीक है। और इसमें टुगेदरनेस भी एंड पे आपको मिल ही जाती है, लेकिन ये कि इसमें बहुत पावरफुल होना पड़ता है उस स्पाउस को कि जिसको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा होता है। और कभी कभी हमारे पास बहुत हैवियर भी केसेस आ जाते हैं कि जिसके अंदर स्पाउस ने मर्डर ही कर दिया, ठीक है, दूसरे को मार ही दिया, वो बची ही नहीं बेचारी, या वो बचा ही नहीं कि बेहतरी आ पाती। तो इस तरह के भी सवियर केसेस हमारे पास आ रहे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ द ड्रग की कितनी ली जा रही है और उस बंदे के ऊपर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ में उसकी कंपनी कैसी है जिसमें बैठ के वो ये सब करता है। तो ओवरऑल बस ये है कि असूलन तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो ये रिलेशन को स्पॉइल करती है, लेकिन अगर हो जाए तो इस पे बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि इस चीज में इसको सपोर्टिव लेवल पर लेके चलें और रिजिलियंट होके चलें, और दूसरे के अंदर भी रिजिलियंस को डेवलप करने की कोशिश करें। होपफुली कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।